हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू चैनल। और आज हम लोग बेटा आपके लिए लेके आए हैं, आपकी बोर्ड एग्जाम्स आ रही हैं 10th की, राइट। तो उसके लिए हम लोग पार्ट 1 में लेके आए हैं लाइफ प्रोसेसेस। 2 पार्ट में पूरे चैप्टर को हम लोग डिवाइड करेंगे लाइफ प्रोसेसेस को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ पार्ट 1, ठीक है। अब लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट करें उससे पहले देखिए उसकी डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच, एक स्लाइड और आगे चलते बेटा। तो प्रोसेस बाय विच your living organism performs certain basic and essential functions which are required to maintain and sustain life are known as life processes. The basic and essential functions performed by a living organism to sustain and maintain life is known as life processes. There are 4 kinds of life processes, 4 main events. They are nutrition, respiration, transportation and excretion. Okay, so nutrition, respiration, transportation and excretion. Today we are going to see only 2 events, that is nutrition and respiration. So we will start with nutrition. न्यूट्रिशन की डेफिनेशन बच्चा देखें तो प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइजेस द कंपोनेंट्स ऑफ फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन. So in the first step, the organism is going to obtain the food and it will break down that food into simpler molecules and it will utilize those simpler molecules to sustain life. That is known as nutrition. What is the need of food? हम लोग खाना खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? तो फूड के जो कंपोनेंट्स हैं दे आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, दे आर यूटिलाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट, they provide energy to the cells. That energy is utilized for performing various functions. And the third point beta is that food components are utilized for the repair of worn out cells. So there are 3 basic need of food. First is growth and development. Second one is energy requirement. They will be used to form ATP. They will be used to form ATP. And the third function is they are used for the repair of worn out cells. ठीक है, अब न्यूट्रिशन की थोड़ी सी डिटेल्स देखेंगे बेटा हम. There are basically 2 types of nutrition. One is autotrophic and heterotrophic. So we have divided nutrition into 2 types, autotrophic and heterotrophic. When we talk about autotrophic nutrition, सीधा मतलब है बेटा they will prepare their own food. Autotrophic, ट्रॉफ मतलब food, right? तो auto जब हम कह रहे हैं तो self, auto का मतलब हो गया self. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं दे आर गोइंग टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, मतलब वो खुद का खाना खुद बना रहे हैं, राइट. नाउ फॉर मेकिंग दिस फूड दे रिक्वायर एनर्जी. They require energy. If they convert light into into chemical energy, then it is known as photoautotroph. अगर वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं into ATP and that ATP is utilized for making food, then that kind of organisms are known as photoautotroph. And that mode of nutrition is known as photoautotrophic nutrition. ठीक है, तो लाइट को ब्रेक डाउन करेंगे, ATP फॉर्म करेंगे and that ATP is utilized for making food. तो those organisms are known as photoautotroph and the mode of nutrition is known as photoautotrophic nutrition. सबसे पहले इसके एग्जाम्पल्स देखते हुए आगे बढ़ते हैं बेटा. एग्जाम्पल्स में अगर आप फोटो ऑटोट्रॉफ्स की बात कर रहे हैं तो यू कैन राइट डाउन ग्रीन प्लांट्स. सबसे पहला एग्जाम्पल आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? ग्रीन प्लांट्स. सेकेंड एग्जाम्पल इज ब्लू ग्रीन एल्गी. सेकेंड एग्जाम्पल हमने क्या लिखा? ब्लू ग्रीन एल्गी. ठीक है, जिसे हम लोग ब्रैकेट में BGA करके भी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, बट आप एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे, आप उसका कंप्लीट फॉर्म लिखेंगे, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी. थर्ड एग्जाम्पल ओवर हियर इज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. So you have 3 examples for photoautotroph. Photoautotrophs are going to convert light into ATP. That ATP is utilized for making food. Examples of photoautotrophic organisms are green plants,
blue-green algae, and photosynthetic bacteria. The another type of autotrophic nutrition is chemoautotroph, where chemicals are broken down to form ATP. So in chemoautotroph, chemicals are broken down to form ATP, and that ATP is utilized for making food, right? Now the examples of chemoautotrophs, very basic example, you have learnt it in nitrogen cycle. In chemoautotrophs, we can write down the first example as nitrifying bacteria. कौन सा एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया which can convert ammonia into nitrate. Process is known as nitrification, and the bacteria are known as nitrifying bacteria. The second example of chemoautotrophs you can write down over here, that is sulfur bacteria. तो ये दोनों ही ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया क्या करेंगे? दे विल ब्रेक डाउन द केमिकल्स इनटू एटीपी. केमिकल्स का ब्रेक डाउन करेंगे, एनर्जी रिलीज होगी, दैट एनर्जी इज ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड दैट एटीपी इज यूटिलाइज्ड फॉर मेकिंग food. So autotrophic means they will prepare their own food. There are two types of autotrophs, photoautotrophs and chemoautotrophs. We have written the definition and examples. The second kind of nutrition is heterotrophic nutrition. Heterotrophic, hetero means differs in nutrition. They cannot make their own food. They are dependent for food. So they do not prepare their food. They do not prepare their own food. They are dependent on other organisms for food. They can be dependent on plants, for example, herbivores. They can be dependent on animals, for example, carnivores. Now, in heterotrophic nutrition, there are three: holozoic, saprotrophic, and parasitic. When we say holozoic, सिंपल सा मीनिंग है बेटा एनिमल लाइक न्यूट्रिशन. तो जब भी वर्ड लिखा है होलोजोइक, it means animal like nutrition, in which there are certain steps for performing your nutrition function. First one is ingestion of food, second step is digestion, third step is absorption, fourth is assimilation, and the fifth step is your egestion. So first step ingestion, then digestion, absorption, then assimilation and egestion. ये स्टेप्स बेटा हम लोग डिटेल में देखेंगे इन फर्दर स्लाइड्स, राइट. होलोजोइक का एग्जाम्पल देना है. यू कैन गिव अमीबा एंड ह्यूमंस. दो एग्जाम्पल एटलीस्ट आपको याद रहने चाहिए, दैट इज अमीबा एंड ह्यूमंस. ठीक है, पैरामेशियम भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं होलोजोइक में. सेप्रोट्रॉफिक जब हम कह रहे हैं, होलोजोइक इज डन, राइट. When we say saprotrophic nutrition, मतलब they depend on dead and decaying material. They depend on dead and decaying material. Now, dead and decaying material. Here the digestion is extracellular. Digestion is extracellular. It means the organisms are going to secrete the digestive enzymes outside the cell. Outside the cell, your complex food material is converted into simpler forms. Then those simpler molecules are absorbed inside the cell. So digestion occurs outside the cell. It is known as extracellular digestion. The third type is parasitic, where the parasite, the organism, depends on host. It depends on host for nutrition, for shelter. It depends on host. In parasitic organisms, you can give the examples: leech, lice, ticks. You can also write down over here
Cuscuta. Cuscuta is a non-chlorophyllous plants. ठीक है, तो लीच, लाइस, ticks and Cuscuta are the examples of parasitic mode of nutrition. Parasites are the organisms which depends on host for shelter and for nutrition, right? Saprotrophic पे बेटा आप यहाँ पे example लिख सकते हैं. You can write down yeast. Sorry, instead of yeast, more better example is you can write down mushroom. You can write down bacteria. In short, saprotrophic organisms में अगर आपको example लिखना है, you can write over there fungi and bacteria. Mushroom is a kind of fungi, right? तो आप क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? Fungi and bacteria. ठीक है, तो ये हो गए आपके types of nutrition in which we have seen autotrophic nutrition and heterotrophic. In autotrophic we have seen photoautotrophs and chemoautotrophs. In heterotrophic we have seen 3 types: holozoic, saprotrophic and parasitic. ठीक है, अब हम लोग फोकस करेंगे बेटा ऑन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो सबसे पहले आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. अब जब आप कहते हैं बेटा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यू आर डायरेक्टली सेइंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इज द प्रिपरेशन ऑफ फूड, द मेकिंग ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. The preparation of food by the green plants in the presence of sunlight and chlorophyll. Here जो ऊपर वाला ये इमेज आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जनरल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. जनरल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस in which 6 molecules of carbon dioxide are six molecules of carbon dioxide along with 12 molecules of water in the presence of sunlight and chlorophyll are converted into one molecule of glucose. They are converted into one molecule of glucose with the release of 6 molecules of oxygen and 6 molecules of water. This is your general equation for photosynthesis, right? So here, as we can see, the raw materials are carbon dioxide and water, and the products which we obtain is glucose, that is carbohydrate, oxygen and some water molecules. This whole process is going to occur in the presence of sunlight with the help of some special pigments, that is chlorophyll. Now chlorophyll is the special pigment which helps in photosynthesis. Chlorophyll is mainly found in leaf. So here the diagram which you can see is of dicot leaf. कैसे बता सकते हैं हम लोग? यहाँ पे हमें कौन सा वेनेशन दिख रहा है? रेटिकुलेट वेनेशन. कौन सा वेनेशन है? द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इज इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क that is only present in dicots. So this is the diagram of dicot leaf. When we took a TS of dicot leaf, तो यहाँ पे ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, that is TS of transverse section of dicot leaf. As you can see, in leaf there are 2 epidermis, upper and lower. तो लीफ के अंदर there are 2 epidermis, upper epidermis and lower epidermis. Upper epidermis and lower epidermis, both of them are covered by a waxy covering which is known as cuticle. तो पूरी अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बाहर की सरफेस पे बेटा, मतलब अपर एपिडर्मिस के बाहर और लोअर एपिडर्मिस के बाहर प्रेजेंट है एक वैक्सी क्यूटिकल. क्यूटिकल का फंक्शन ये है कि इट विल रिड्यूस ट्रांसपिरेशन. क्यूटिकल इज अ वैक्सी कवरिंग, सो इट विल रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, राइट? नाउ बिलो द अपर एपिडर्मिस इज प्रेजेंट पैलिसेड पैरेन्काइमा, and below the lower epidermis is present spongy parenchyma. अब ये जो पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा आप ये देख रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दे विल कंपोज योर मेसोफिल टिश्यू. दे आर गोइंग टू कंपोज योर मेसोफिल टिश्यू. मेसोफिल टिश्यू is the main tissue for photosynthesis.
This is the main tissue where photosynthesis is going to occur. मेसोफिल टिश्यू के जो सेल्स हैं बेटा, पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पोंजी पैरेन्काइमा, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट. तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली फाउंड इन प्लांट सेल्स. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली विच इज फाउंड इन प्लांट सेल्स. क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है बेटा थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन. एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर अटैच है आपका क्लोरोफिल, which is the main pigment to perform photosynthesis. So main tissue for performing photosynthesis is mesophyll tissue. Mesophyll tissue के जो cells रहेंगे they contain chloroplast. Chloroplast have thylakoid membrane. Thylakoid membrane पे attach है आपका chlorophyll, which is the main pigment for performing photosynthesis. It can convert light energy into ATP. It has the ability to convert your light energy into ATP. ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू हो गया पूरे फोटोसिंथेसिस का. नाउ देर आर सर्टेन मेजर इवेंट्स विच अकर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. सबसे पहली इवेंट जो फोटोसिंथेसिस में होती है दैट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय योर ग्रीन कलर्ड पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल. Second event which occurs over here is conversion of light energy into ATP. The light energy is converted to chemical energy and this chemical energy is stored in the form of ATP, right? Third event which occurs over here is splitting of water and splitting का मतलब हो गया बेटा breakdown. अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो splitting का मतलब हो गया breakdown. तो splitting means breakdown of water molecules into hydrogen and oxygen. तो यहाँ पे breakdown of water molecules occur, splitting of water molecules occur to form hydrogen and oxygen. This hydrogen is supplied to your carbon dioxide and it is converted into C6H12O6. So here in the fourth event you can see रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स में से जो फर्स्ट फॉर्म्ड शुगर है दैट इज ग्लूकोज. ये जो हम लिख रहे हैं C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज. ऑक्सीजन इज पास्ड इनटू द एटमॉस्फेयर. इट इज आइदर यूज्ड इन रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स और इट इज पास्ड टू एटमॉस्फेयर through diffusion. So you can see oxygen which is passed into the atmosphere comes from water molecule. Oxygen which is released in photosynthesis comes from the splitting of water molecules. So these are the four major events which can occur during photosynthesis. Now as you can see, for formation of carbohydrates we require carbon dioxide. कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है? कार्बन डाइऑक्साइड. तो नेक्स्ट स्लाइड में बेटा हम देखेंगे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट के अंदर किस तरह से एंटर करता है. देयर आर सम स्पेशल ओपनिंग्स जनरली फाउंड इन लीफ एंड दो स्पेशल ओपनिंग्स आर नोन एज स्टोमेटा. तो लीफ की जो एपिडर्मीज है दे हैव सम स्पेशल एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज स्टोमेटल apparatus. तो यहाँ पे हम लोग जो डायग्राम देख रहे हैं बेटा, द फर्स्ट डायग्राम इज ऑफ ओपन स्टोमेटल पोर एंड द सेकेंड डायग्राम इज ऑफ क्लोज्ड स्टोमेटल पोर, राइट. अब ये जो पहला डायग्राम है इसमें ध्यान से फोकस करो बेटा. ये जो मेन ओपनिंग दिखाया है दैट इज स्टोमेटल पोर. The main opening of stomata is known as stomatal pore, right? There are two cells surrounding the stomatal pore and those cells are known as guard cells. उन cells को हम लोग क्या कहते हैं? Guard cells. Guard cells are the special epidermal cells who have chloroplast. तो
तो गार्ड सेल्स आर स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स जिनके पास क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो एपिडर्मल सेल्स है, नॉर्मल एपिडर्मल सेल्स हैज न्यूक्लियस, तो यहाँ पे हम मेंशन नहीं कर रहे हैं न्यूक्लियस, बट गार्ड सेल्स ऐसे एपिडर्मल सेल्स हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये हम लोगों ने लिख दिया, ग्रीन कलर के ये जो डॉट्स दिख रहे हैं दे आर क्लोरोप्लास्ट। नाउ द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, गार्ड सेल will help in opening or closing of stomata। तो ये जो स्टोमेटा का ओपन एंड क्लोज होना है ये कौन गार्ड करेंगे, ये गार्ड करेंगे आपके गार्ड सेल्स। ठीक है, अब किस तरह से, आपको सिर्फ इतना याद रखना है बेटा कि इफ गार्ड सेल्स आर टर्जिड, दे आर फुल ऑफ वाटर, गार्ड सेल्स आर टर्जिड, they are full of water, then your stomatal pore is open। तो अगर हमारे गार्ड सेल्स टर्जिड हैं, they are full of water, then your stomatal pore is open। ठीक है, अगर आपके गार्ड सेल्स श्रिंक हैं या आप कह सकते हैं फ्लैसिड हैं, तब आपका जो पोर है इज क्लोज्ड। ठीक है, तो अगर गार्ड सेल्स आपके टर्जिड है देन द पोर इज ओपन, स्टोमेटल पोर इज ओपन। इफ योर गार्ड सेल्स श्रिंक फ्लैसिड, द पोर विल बी क्लोज्ड। नाउ देयर आर टू फंक्शंस ऑफ, देयर आर, जस्ट अ सेकेंड बेटा, there are two functions of stomata, two major functions of stomata. One is gaseous exchange, it is the pore through which your carbon dioxide can come inside and your oxygen is released in the atmosphere. And the second main function is transpiration, removal of water in the form of water vapor. Removal of water in the form of water vapor is known as transpiration. So there are two major functions of stomata. First is gaseous exchange and another one is transpiration. If guard cells are turgid, stomatal pore is open. If guard cells shrink or flaccid, the stomatal pore is closed. जब stomatal pore open है, your carbon dioxide can enter inside and your oxygen is released outside in the atmosphere. अब जो स्लाइड आप बेटा देख रहे हो, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन दी बोर्ड एग्जाम्स फॉर 2 or 3 मार्क्स, दैट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो ये आप बहुत अच्छे से करेंगे बेटा, लिख लेंगे, इसकी नोट्स बना लेंगे। तो ये जो पूरी स्लाइड आप देख रहे हो दैट इज फॉर न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब थोड़ा सा आगे की स्लाइड अगर आपको याद है बेटा, तो न्यूट्रिशन इन अमीबा की जब हम बात कर रहे हैं तो इट इज होलोजोइक। तो अमीबा में जो न्यूट्रिशन है दैट इज होलोजोइक। सो देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। First is ingestion, second is digestion, then third is absorption, then comes assimilation and egestion. Again we are going to do ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. तो नेक्स्ट स्लाइड में इसी को हम लोग डिटेल में लिखने वाले हैं, साथ साथ में ये स्लाइड भी देखते जाएंगे। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा अगर आपको पूछा गया बेटा क्वेश्चन, तो सबसे पहले तो आप लिख देंगे कि जो अमीबा में न्यूट्रिशन है इट इज होलोजोइक। होलोजोइक कम्स अंडर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक कम्स अंडर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, स्टेप नंबर 1 इंजेशन। Food is taken inside with the help of pseudopodia.
process is known as phagocytosis. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? phagocytosis. It will result in the formation of food vacuole. ठीक है. अब सेकेंड स्टेप is digestion. In digestion, the complex substances are digested into simple particles. Everything occurs inside your food vacuole. The third step is absorption. In absorption, these simple particles which are useful for the cell are absorbed. मतलब सिर्फ useful वाले simple particles are absorbed in the cell. Absorbed by the method known as diffusion. Absorbed by the method known as diffusion. In the fourth step, which is known as assimilation, simple particles are further used to form ATP, and this ATP is used to perform functions. Functions of the cell. In the fifth step, that is egestion, यहां पे देखो बेटा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को आपने ब्रेक डाउन किया इन सिंपल पार्टिकल्स वैक्यूल के अंदर. सिंपल पार्टिकल्स में से यूजफुल सब्सटेंसेस को अब्जॉर्ब कर लिया बाय डिफ्यूशन. उन यूजफुल सब्सटेंसेस से आपने एटीपी बनाया जिसे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज कर लिया. बट अभी भी वैक्यूल के अंदर कुछ अनयूजफुल चीजें स्टोर्ड है which are waste. So this waste is removed outside the cell. This process is known as exocytosis. So these are the 5 steps of nutrition in amoeba, which is holozoic और heterotrophic. अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है बेटा तो एक छोटा सा ऐसा डायग्राम बनाएंगे आप. देखिए ध्यान से, इस तरह का एक डायग्राम प्रिपेयर करेंगे जहाँ पे फूड वैक्यूल स्यूडोपोडिया की हेल्प से इट इज़ टेकन इनसाइड, डाइजेशन परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे अब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब चीज़ें अब्जॉर्ब करी जा रही हैं. एसिमिलेशन में उन्हीं चीज़ों से हम एटीपी फॉर्म कर रहे हैं, राइट. एंड इजेशन में हम लोगों ने वेस्ट पार्टिकल्स को बाहर रिमूव कर दिया. फिर इन्हीं डायग्राम को पॉइंट फॉर्म में इस तरह से आप लिख के अपना क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, राइट. चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा न्यूट्रिशन इन पैरामेशियम. तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं? न्यूट्रिशन इन पैरामेशियम. जब हम न्यूट्रिशन इन पैरामेशियम की बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखना बेटा, अगेन द न्यूट्रिशन इन पैरामेशियम is holozoic. Holozoic comes under heterotrophic. We know that from the previous slide, right? पैरामेशियम के पास सीलिया है. तो सीलिएटेड ऑर्गेनिज्म में अगर कभी भी आपको कुछ नाम एग्जाम्पल पूछा गया है तो यू कैन राइट डाउन पैरामेशियम. तो पैरामेशियम के पास क्या प्रेजेंट है? सीलिया प्रेजेंट है. विद द हेल्प ऑफ सीलिया जो वाटर है उसके सराउंडिंग में उसको वो मूव करेगा. तो सीलियरी मोशन से जो आपके फूड पार्टिकल्स हैं along with the water molecules, they will enter inside the paramecium. A paramecium is the organism which has 2 different sites for ingestion and egestion. तो ingestion के लिए उसके पास प्रेजेंट है एक ओपनिंग जिसे आप कह सकते हैं साइटोस्टोम. तो ओपनिंग को हम क्या कह रहे हैं? साइटोस्टोम. साइटोस्टोम के थ्रू जो आपका वाटर अलॉन्ग विथ फूड पार्टिकल्स एंटर हो रहा है, इट विल एंटर इनसाइड द साइटोफैरिंक्स, या आप इसे कह सकते हैं बेटा गलेट.
ठीक है। तो वाटर अलॉन्ग विथ फूड पार्टिकल्स, मतलब यहाँ पे वाटर है प्लस फूड पार्टिकल्स हैं, इन दोनों को साथ में एंटर करवा रहे हैं हम इनसाइड द साइटोस्टोम। दिस प्रोसेस इज नोन एज पिनोसाइटोसिस। क्या कहते हैं हम लोग इस प्रोसेस को? पिनोसाइटोसिस। ठीक है। अब साइटोफैरिंक्स से वैक्यूल के फॉर्म में फूड एंड वाटर इज रिलीज्ड इनसाइड द सेल। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, राइट? ये वाला डायग्राम, ये फूड वैक्यूल बन गया, इट इज रिलीज्ड इनसाइड द सेल। डाइजेशन होगा, अब्सॉर्ब कर लेंगे हम लोग यूजफुल सब्सटेंसेस को, एंड वेस्ट को रिमूव करेंगे थ्रू एनल पोर। एनल पोर के थ्रू हम इस वेस्ट को आउटसाइड दी सेल रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे बीच में हमने क्या किया? डाइजेशन। और क्या किया हमने? अब्जॉर्प्शन। तो आप इस तरह का एक डायग्राम बनाएंगे, और ये जो फ्लो चार्ट फॉर्म में हमने यहाँ पे लिखा है, जब न्यूट्रिशन इन पैरामेशियम का क्वेश्चन आएगा, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इन्हीं को स्टेटमेंट्स में लिखेंगे। ध्यान से सुनना, सिलियरी मोशन से water along with food is taken inside the cell. That process is known as pinocytosis. The opening through which your vacuole is coming inside, your food is coming inside, is known as cytostome. Cytostome leads to cytopharynx. Cytopharynx के end पे form हो जाएगा vacuole. Digestion will occur, absorption will occur inside the cell. Through anal pore, waste substances are removed outside the cell. Again, removal of waste outside the cell is known as exocytosis. तो जब चीजें सेल के अंदर आ रही हैं, that is endocytosis. सेल के बाहर जा रही हैं, that is exocytosis. ठीक है, this is nutrition in paramecium. अब ध्यान से देखो बेटा, न्यूट्रिशन के पार्ट में द लास्ट पार्ट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लोग देख रहे हैं, और हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, एलिमेंट्री कैनल एंड एसेसरी ग्लैंड्स। दो चीजों से बना हुआ है, एलिमेंट्री कैनल एंड एसेसरी ग्लैंड्स, राइट? एलिमेंट्री कैनल की जब हम बात करते हैं, तो एलिमेंट्री कैनल इज अ काइंड ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट वेयर देयर इज अ लॉन्ग होलो ट्यूब. There is a long hollow tube which extends from mouth up to anus. तो कहाँ से extend करेगी ये long hollow tube? From mouth, and it will extend into your whole body and it will end in the anus. तो it is a long hollow tube extending from mouth to anus. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट्स। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम माउथ। तो एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट कहाँ से होगी? माउथ से, राइट? नाउ इनसाइड द माउथ यू हैव टिथ, वी नो दैट टिथ विल हेल्प टू च्यू फूड. तो दे विल ग्राइंड द फूड पार्टिकल्स, जो बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स हमने खाए हैं, सपोज एप्पल का एक बाइट हमने खाया है, तो दैट लार्जर पार्टिकल्स आर च्यूड डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. देयर आर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन योर माउथ. देखो यहाँ पे बेटा, एसेसरी ग्लैंड्स में क्या लिखा हुआ है? सलाइवरी ग्लैंड्स. तो सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द माउथ, एंड दीज सलाइवरी ग्लैंड्स आर गोइंग टू, दिस इज प्रेजेंट इनसाइड द माउथ, एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं. तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या सिक्रीट कर रहे हैं? सलाइवा. सलाइवा के पास प्रेजेंट है सलाइवरी अमाइलेज. क्या प्रेजेंट है वहाँ पे? सलाइवरी अमाइलेज. ठीक है, तो जो सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट है, वो सलाइवरी अमाइलेज विल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च. तो स्टार्च का जो डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो गया, राइट? तो सलाइवरी अमाइलेज विल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च. माउथ में जो सलाइवा सिक्रीट हुआ, उस सलाइवा की हेल्प से जो आपका फूड पार्टिकल है उसमें म्यूकस प्रोवाइड किया, एंड इट इज ईजी टू स्वेलो इट. It is easy to swallow it, right? तो food particle mixed with saliva is known as bolus. Bolus will move further. अब bolus move करके सबसे पहले जाएंगे pharynx में. कहाँ पे जा रहा है बेटा? pharynx में. Pharynx is a common passage for food and air. हमेशा आपको याद रखना है बेटा कि pharynx वाला जो region कभी भी पूछा है तो it is a common passage
फॉर फूड प्लस एयर। तो फूड एंड एयर के लिए एक कॉमन पैसेज है, दैट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स विल लीड टू, जब आप एलिमेंट्री कैनल की बात कर रहे हैं, फेरिंग्स विल लीड इनटू ओएसोफेगस व्हिच इज नोन एज फूड पाइप। नाउ हियर देयर इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप व्हिच इज नोन एज एपिग्लॉटिस। क्योंकि ये जो फेरिंग्स का ओपनिंग है, इट कैन लीड टू आइदर इसोफेगस और इट कैन लीड टू योर लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में। तो जो इसोफेगस है वो फूड पाइप एलिमेंट्री कैनल का पार्ट है, तो वहां से फूड एंटर करेगा, लैरिंग्स के थ्रू एयर एंटर करेगी, दोनों का कॉमन पैसेज है, दैट इज फेरिंग्स, राइट। तो ये भी तो हो सकता है ना कि फूड पार्टिकल्स कैन एंटर इनटू द लैरिंग्स। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए देयर इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप व्हिच कैन ओपन और क्लोज, इट इज नोन एज एपिग्लॉटिस। उसे हम क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। इसोफेगस के थ्रू आपका जो बोलस है इट विल रीच इनसाइड द स्टमक। कहां पे पहुंच गया? स्टमक। नाउ स्टमक इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ अवर एब्डोमेन बिलो द डायफ्राम। ठीक है, तो स्टमक के अंदर प्रेजेंट है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। सबसे पहले तो देखो, इट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, तो वहां पे कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, जिसकी वजह से आपका फूड इजीली डाइजेस्ट हो सकता है। प्लस इसके पास प्रेजेंट है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन स्टमक आर नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। These gastric glands will secrete hydrochloric acid, they will secrete pepsin and they will secrete mucus. Hydrochloric acid will make the medium acidic. Acidic medium is required for the functioning of pepsin. तो ये एसिडिक मीडियम किसको हेल्प कर रहा है फंक्शन परफॉर्म करने के लिए? पेप्सिन को। Pepsin is the enzyme which can digest protein. It would digest protein. प्रोटीन को डाइजेस्ट करके डायरेक्टली अमाइनो एसिड्स नहीं बन रहे हैं यहाँ पे, प्रोटीन को डाइजेस्ट करके उसके छोटे छोटे पार्ट्स बन रहे हैं, दे आर नोन एज स्मॉल पेप्टाइड्स। प्रोटीन्स को एक बहुत लॉन्ग फ्रेगमेंट ऑफ अमाइनो एसिड है, आपने उसे ब्रेक डाउन कर दिया इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, दो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स आर नोन एज पेप्टाइड्स। म्यूकस का फंक्शन ये है कि जो एसिडिक मीडियम सेल के अंदर बन रहा है, स्टमक के अंदर बन रहा है, राइट, सेल के अंदर नहीं, स्टमक के अंदर बन रहा है, म्यूकस स्टमक की जो वॉल है उसे प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम दैट एसिडिक पीएच। ठीक है, तो म्यूकस का फंक्शन क्या हो गया? प्रोटेक्ट्स योर स्टमक वॉल फ्रॉम एसिडिक पीएच। ठीक है, हमने यहां स्टोमल लिख दिया, स्टमक वॉल। तो म्यूकस प्रोटेक्ट करेगा आपके स्टमक वॉल को फ्रॉम द एसिडिक पीएच विच वॉज मेड बाय योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दिस मच थिंग्स आर गोइंग टू अकर इन स्टमक। नाउ इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब स्टमक के थ्रू जो आपका पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, जिसे आप चाइम कहेंगे, इट विल मूव इनसाइड योर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ योर एलिमेंट्री कैनल। तो ये लॉन्गेस्ट पोर्शन है, बट जब इसे स्टोर करते हैं हम लोग, इसे बॉडी के अंदर रखते हैं, तो इट इज़ इन हाईली कॉइल्ड फॉर्म। तो उसे पैक करने के लिए उसका खूब सारा कॉइलिंग करते हैं, राइट। तो योर स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, बट जब वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, इट इज़ इन हाईली कॉइल्ड फॉर्म, तो वो पैक हो जाएगा शॉर्ट स्पेस में। ठीक है, अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर complete digestion of carbohydrates, proteins and fats would occur. You have to write that in small intestine, complete digestion of carbohydrates, proteins and fats will occur with the help of intestinal juices. With the help of intestinal juices. ठीक है? Now your small intestine receives the secretion of liver and pancreas. कौन कौन से सिक्रीशन रिसीव कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन? सिक्रीशंस ऑफ लीवर एंड सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियास, राइट। इट हैज विलाई, स्मॉल इंटेस्टाइन हैज विलाई, जो आफ्टर डाइजेशन जो सिंपलर पार्टिकल्स फॉर्म हुए हैं उन्हें अब्सॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे।
तो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके पास प्रेजेंट है इस तरह से विलाई, विलाई की वजह से इंक्रीज हो जाएगा सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपलर पार्टिकल्स। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं बेटा कि स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ लीवर एंड पैंक्रियाज। सी, योर लीवर इज गोइंग टू सिक्रीट बाइल, ठीक है। बाइल विल मेक द फूड अल्कलाइन, क्योंकि स्टमक में से जो फूड आ रहा है, जो चाइम आ रहा है, दैट इज एसिडिक बिकॉज ऑफ HCl. It can destroy the walls of small intestine. So liver will secrete bile, will make this chyme alkaline so that your pancreatic enzymes now can function. तो alkaline pH क्यों required है? So that our pancreatic enzymes can function. Again, bile will help to break down your fat molecules. Fat molecules are very large molecules, right? So it will break down your fat molecules into smaller molecules, and that is known as emulsification. क्या कहते हैं इसे हम लोग? Emulsification. And then this emulsified fat is digested inside the small intestine into fatty acid and glycerol, which is then absorbed through the walls of small intestine. ठीक है, तो आपके बाइल ने क्या किया? इमल्सिफाई किया फैट को, स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड किया ताकि ज़्यादा सरफेस एरिया मिले फॉर एंजाइम एक्शन. Lipase, which is coming from your pancreas, will digest this emulsified fat and it will form fatty acid and glycerol. Again, your trypsin will help in the digestion of proteins, which is again coming from pancreas into amino acids. Into amino acids. ठीक है, एक स्लाइड फिर से आगे चलते हैं बेटा. यहाँ पे देखो, तो लॉन्गेस्ट पार्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन. कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स हैव अकर्ड विद द हेल्प ऑफ इंटेस्टिनल जूसेस. इट इज रिसीविंग द सिक्रीशन ऑफ लीवर एंड पैंक्रियाज. लीवर एंड पैंक्रियाज के सिक्रीशन हमने देख लिए. लीवर में से बाइल आ रहा था, पैंक्रियाज में से ट्रिप्सिन आ रहा था, एंड योर ट्रिप्सिन के साथ साथ क्या आ रहा था वहाँ पे? ट्रिप्सिन के साथ साथ आ रहा था लाइपेज, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स. यहाँ पे प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई. विलाई विल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स के डाइजेशन से जो सिंपलर फॉर्म हुए हैं वो सिंपल फॉर्म्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा. अब जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, जो यूजफुल नहीं है बॉडी के लिए, दैट इज सेंड टू लार्ज इंटेस्टाइन. द लार्ज इंटेस्टाइन रिसीव्स द अनअब्जॉर्ब्ड फूड. अभी भी इस अनअब्जॉर्ब फूड में वाटर प्रेजेंट है. वाटर को अभी भी हमने अब्जॉर्ब नहीं किया है, राइट? तो यहाँ भी लार्ज इंटेस्टाइन के पास विलाई प्रेजेंट है कुछ ऐसे. दैट विलाई विल अगेन इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. एंड फाइनली जो बिल्कुल अनअब्जॉर्ब्ड पार्ट है, दैट इज रिमूव्ड थ्रू एनस. दैट इज रिमूव्ड थ्रू एनस. यहाँ पे लास्ट स्टेप हम लिख देंगे, दैट इज इजेशन. यहाँ माउथ से जब स्टार्ट किया था, दैट वाज इंजेशन. बीच में हमने देखा डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन. ठीक है, तो ये हो गया आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. हमने देखा एलिमेंट्री कैनाल, उसके पार्ट्स, देयर फंक्शंस. You have to write like this, and you have to write also the associated glands which will help in the digestion process. Okay? ठीक है बेटा, तो अब हम लोगों ने फर्स्ट इवेंट देख चुके हैं, दैट इज न्यूट्रिशन. और अब हम लोग देखेंगे सेकेंड इवेंट फॉर टुडे, दैट इज रेस्पिरेशन. यहाँ आपको एक ब्यूटीफुल सा डायग्राम दिख रहा है ऑफ योर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का समरी फॉर्म में हम लोग यहाँ पे देखेंगे. ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं. द सेकेंड लाइफ प्रोसेस, दैट इज रेस्पिरेशन. देखो बेटा, जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस है. हमेशा याद रखना, रेस्पिरेशन अकर्स एट सेल्यूलर लेवल एंड ब्रीदिंग इज
exchange of gases. Breathing is exchange of gases. Which gases? Oxygen and carbon dioxide. तो breathing is just exchange of gases, whereas respiration would occur at the cellular level, जहाँ पे आपका जो ग्लूकोज है that is broken down to form energy. ठीक है, and the waste material is again removed out of the cell. That is known as respiration. तो respiration occurs at cellular level, तो आप humans के केस में इसे cellular respiration भी कह सकते हैं. तो respiration को और क्या कह सकते हैं हम लोग? cellular respiration, because it occurs at cellular level. तो breathing और respiration दोनों different हैं. breathing में you can say there is exchange of gases. कौन कौन सी gases का exchange होगा? Oxygen and carbon dioxide. Now there are two steps for this: inhalation and exhalation. Inhalation is also known as inspiration and exhalation is also known as expiration. When you take the gases, air inside your nostrils, it will move through your respiratory system, it will enter inside the lungs and it will reach the alveolus. That is inhalation. ऐसे किया हम लोगों ने, right? That is inhalation or inspiration. जब alveoli के through that gases reach into the blood, they are carried to the tissues. tissues में से cell में गए, respiration खत्म हुआ, waste collect करके वापस से blood will come to alveoli and alveoli से फिर वापस nostrils के through that air is passed out. That is expiration. So there are two steps: inhalation and exhalation. Inhalation is also known as inspiration. Exhalation is known as expiration. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बेटा नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे why do we breathe. तो अभी जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया उसे ही फ्लो चार्ट फॉर्म में समझ रहे हैं हम लोग. तो जब भी क्वेश्चन आएगा why do we breathe, you have to write this in statement form. कैसे लिखना है आपको? स्टेटमेंट्स में लिखना है, वरना बोर्ड में मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा. ठीक है, हम लोग ये वन शॉट वीडियो के फॉर्म में देख रहे हैं, इसलिए फ्लो चार्ट फॉर्म में देख रहे हैं. तो जब आप एग्जाम में लिखेंगे इन्हीं चीज़ों को तो आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे. Try to underline the main points, try to underline the heading and keep your presentation neat and clean so that the examiner can see easily the main points of the answer and they can give you marks, right? तो अच्छे मार्क्स के लिए गुड प्रेजेंटेशन, नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड. ठीक है, तो कंटेंट तो रिक्वायर्ड है ही, साथ साथ में आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए. अब यहाँ पे हम लोग फ्लो चार्ट फॉर्म में समझ रहे हैं व्हाई डू वी ब्रीथ. अब जब हम ब्रीथ करते हैं, जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, दैट ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स. ठीक है, हमने मान लीजिए कि बोल दिया उसे इनहेलेशन. अब इट विल मूव थ्रू योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, एंड इट विल रीच अप टू द लंग्स. तो वही ऑक्सीजन कहाँ पे आ चुका है? लंग्स के अंदर. अब ये जो लंग्स हैं इनमें प्रेजेंट है एल्वियोलाई. लंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? कुछ एयर सैक्स जिन्हें हम लोगों ने कहा एल्वियोलस. अब इन एल्वियोलस के थ्रू दैट ऑक्सीजन विल रीच इनटू द ब्लड. मतलब एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन है उसके सराउंडिंग में कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है. तो एल्वियोलस के अंदर से ऑक्सीजन विल मूव इनसाइड दोज ब्लड कैपिलरीज एंड ब्लड कैपिलरीज के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव अगेन इनटू द एल्वियोलस. बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि एल्वियोलस में से जो ऑक्सीजन है इट विल मूव इनसाइड द ब्लड. ब्लड कहाँ प्रेजेंट है? ब्लड कैपिलरीज के अंदर प्रेजेंट है. अब ये जो ब्लड है बेटा, इट इज कैरिड थ्रू योर आर्टरीज, योर वेन्स अप टू योर टिश्यूज. टिश्यूज में जाके ये ब्लड पहुंचेगा सेल के अंदर. अब सेल के अंदर कुछ काम हो रहा है बेटा. तो ये ब्लड ऑक्सीजन लेके पहुंचा सेल के अंदर. तो ये जो क्लाउड बनाया मैंने दैट इज योर सेल. सेल के अंदर किस तरह से रेस्पिरेशन हो रहा है वो देख रहे हैं बेटा हम लोग. तो सेल के अंदर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज कहाँ से आया? आगे जो न्यूट्रिशन में डाइजेस्टिव सिस्टम देखा हमने, यूजफुल सब्सटेंसेस वर अब्सॉर्ब्ड, दे विल रीच अप टू द सेल, वही ग्लूकोज है ये. तो रेस्पिरेशन के थ्रू जो ऑक्सीजन आया वो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, इट विल फॉर्म एनर्जी. एनर्जी इज ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी
it will form water and it will form carbon dioxide. Now this carbon dioxide is a kind of waste. It is a waste product. तो सेल के पास से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट विल मूव इनसाइड द ब्लड. ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मूव कर गया? इनसाइड द ब्लड. ब्लड कैपिलरीज विल कैरी दैट कार्बन डाइऑक्साइड अगेन अप टू योर लंग्स थ्रू एल्वियोलस. तो एल्वियोलस के थ्रू अगेन ब्लड कैपिलरीज में से ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुंच जाएगा? इनटू द लंग्स. लंग्स में से दिस कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट इन द एटमॉस्फेयर and that process is known as exhalation. तो यहाँ पे हम लोगों ने बेटा देखा exhalation and inhalation. So ये फ्लो चार्ट फॉर्म में भी अगर आप याद रख लें तो पूरा रेस्पिरेशन आपको याद हो जाएगा. ऑक्सीजन वॉज इन द एटमॉस्फेयर, इनहेलेशन के थ्रू वो एंटर करा, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एंटर हो गया. इट विल रीच अप टू द लंग्स. लंग्स के अंदर कुछ एयर लाइक बैग्स प्रेजेंट हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, उन्हें हम लोगों ने कह दिया एल्वियोलस. एल्वियोलस के थ्रू डिफ्यूशन की हेल्प से दैट ऑक्सीजन विल रीच इनटू द ब्लड. ब्लड थ्रू ब्लड कैपिलरीज विल कैरी दैट ऑक्सीजन अप टू द सेल. सेल के अंदर रेस्पिरेशन हुआ इन विच ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड टू ब्रेक डाउन योर ग्लूकोज इनटू एनर्जी, वाटर and your carbon dioxide. Carbon dioxide is a waste product. Again that carbon dioxide is carried into the blood. It is thrown outside in the blood. Blood will carry that carbon dioxide into lungs along with alveolus. तो alveolus में गया, alveolus से फिर आपके bronchioles में, bronchi में and then trachea में, तो lungs के अंदर move कर गया. trachea में जाके nostrils के through exhale out हो गया कार्बन डाइऑक्साइड अगेन इन दी एटमॉस्फेयर. तो अगर ये फ्लो चार्ट भी हमें याद हो गया बेटा तो हम बड़े आराम से रेस्पिरेशन की पूरी नोट बना सकते हैं, राइट. देखो यहाँ पे देर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में हम लोगों ने बोला ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, राइट. अब जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है टू फॉर्म एटीपी, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है टू फॉर्म एटीपी, वहाँ पे आइदर दी ऑक्सीजन इज प्रेजेंट और ऑक्सीजन इज एब्सेंट. तो इट वुड अकर आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. जब ये रेस्पिरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, वन इज एरोबिक, अनदर वन इज एनएरोबिक. So if the respiration occurs in the presence of oxygen, then it is known as aerobic respiration. If it occurs in the absence of oxygen, then it is known as anaerobic respiration. पहला difference. Occurrence कहाँ है? जो aerobic respiration है, it occurs in cytoplasm and mitochondria. तो कहाँ पे हो रहा है आपका aerobic respiration? At two places, cytoplasm and mitochondria. ठीक है. जो आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन है इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म. तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन विल अकर ओनली इन साइटोप्लाज्म. आपके एरोबिक रेस्पिरेशन में मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. इन एरोबिक रेस्पिरेशन मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. फॉर एग्जाम्पल, from one glucose molecule, I will write down over here, from one glucose molecule 38 ATP are produced. कंपेयर करके देख रहे हैं हम लोग. जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. मतलब यहाँ पे वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल में से ओनली 2 ATP आर प्रोड्यूस्ड. तो आप कंपेयर कर सकते हैं बेटा. एरोबिक रेस्पिरेशन में जहाँ पे 38 ATP फॉर्म हो रहे हैं, वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन में ओनली 2 ATPs आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. So more energy is produced in aerobic respiration and less energy is produced in anaerobic respiration. Now your anaerobic respiration is also known as alcoholic fermentation. First, your anaerobic respiration is known as fermentation. तो आप anaerobic respiration को fermentation भी कह सकते हैं. There are two types of fermentation, alcoholic fermentation and lactic acid fermentation. दो टाइप के फर्मेंटेशन हो सकते हैं डिपेंडिंग वेयर दे आर टेकिंग प्लेस, वेयर दे आर अकरिंग. फर्स्ट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड अनदर वन इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, राइट.
अब देखो बेटा, ये एक ओवरव्यू है पूरा रेस्पिरेशन का, ठीक है। अगर आपको नहीं भी दिख रहा है यहाँ पे ध्यान से देखना, एनसीईआरटी में से भी आप देख सकते हैं बेटा, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, सेल के पास ग्लूकोज है, राइट। इन द साइटोप्लाज्म इट इज ब्रोकन डाउन इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, एंड द नेम ऑफ दैट 3 कार्बन मॉलिक्यूल इज पायरुवेट। अब इस प्रोसेस में ग्लूकोज को हमने ब्रेक डाउन किया इनटू पायरुवेट इनसाइड द साइटोप्लाज्म एंड वी हैव लिबरेटेड एनर्जी ऑल्सो। तो हमने ग्लूकोज में से पायरुवेट बना लिया, ग्लूकोज के पास 6 कार्बन है, पायरुवेट के पास देयर आर 3 कार्बन। अब पायरुवेट के साथ साथ यहाँ पे हम लोगों ने क्या फॉर्म किया, एनर्जी। अब पायरुवेट जो है वो अभी भी साइटोप्लाज्म में है। इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, सेल के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन inside the mitochondria, in the presence of oxygen, your pyruvate is further converted into carbon dioxide, water and energy. तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो पायरुवेट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इज अगेन ब्रोकन डाउन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, राइट। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है, देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। मान लीजिए कि आप बात कर रहे हैं यीस्ट सेल्स की, कुछ बैक्टीरिया की, ठीक है, यीस्ट तो फंजाई है, बट देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया विच कैन परफॉर्म अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, राइट। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं यीस्ट सेल्स की, जो एग्जाम्पल गिवन है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन योर पायरुवेट इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इथेनॉल। इथेनॉल इज अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल। अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है, प्लस एनर्जी इज लिबरेटेड, ठीक है। तो ये हो गई बात आपके अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की। आपने ये जो ऊपर देखा दैट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। डन यहां तक बेटा। अगर हम बात कर रहे हैं मसल सेल्स की, सपोज कि आप विगरस एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, आप इतना इनहेल नहीं कर पाए, ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, तो इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन जो आपके मसल सेल्स हैं वहाँ पे पायरुवेट इज कन्वर्टेड फर्दर टू फॉर्म लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन आपको अकरेंस याद रखना है, मसल सेल्स, और इस टाइप के फर्मेंटेशन को हम कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये एग्जाम्पल हो गया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का। जो लास्ट स्टेप आप यहां पे देख रहे हो ये वाला, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो पहले दोनों एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं। फर्मेंटेशन में देयर आर 2 टाइप्स, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में योर पायरुवेट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया in the presence of oxygen is converted into carbon dioxide, water and energy. अब देखो बेटा, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, दिस इज फॉर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। इट स्टार्ट्स विथ योर नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल से जो एयर आप इनटेक करोगे, मतलब सबसे पहला तो आ गया नेजल पैसेज, इसे हम फर्दर स्लाइड में देखेंगे डिटेल में, ठीक है, अभी सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं। तो सबसे पहला है नेजल पैसेज। उसके बाद योर एयर विल एंटर इन दी फैरिंग्स। कहाँ पे एंटर करेगी, फैरिंग्स के अंदर एंटर करेगी। तो नेजल पैसेज के थ्रू जो एयर आप इनटेक कर रहे हो, ये नेजल पैसेज है, नेजल पैसेज के थ्रू दैट एयर इज पास टू फैरिंग्स। Pharynx was the common passage for food and air. We know that pharynx is the common passage for food and air. ठीक है, pharynx अगर digestive system में आप बात कर रहे हो तो pharynx will lead to esophagus. In respiratory system your pharynx will lead to larynx. ठीक है, दोनों के बीच में एक thin cartilaginous flap है which is known as epiglottis. Okay, pharynx will lead the air to larynx. तो फैरिंग्स से आपकी एयर कहाँ पे आ गई, लैरिंग्स में। अभी हम सिर्फ फ्लो चार्ट फॉर्म में एक फॉर्म देख रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का, आप लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले आपने लिखा नॉस्ट्रिल्स, फिर आपने लिखा फैरिंग्स, फिर आपने लिख दिया यहाँ पे लैरिंग्स। लैरिंग्स विल लीड द एयर टू ट्रैकिया।
तो नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, ट्रैकिया। ट्रैकिया के आसपास में ही आपको दिख रहा है बेटा रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं। अब ये क्यों प्रेजेंट है यहाँ पे, ये रिंग्स प्रिवेंट करेंगे कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया के थ्रू आपकी एयर मूव कर रही है, तो दे विल प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रैकियल वॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ट्रैकिया फर्दर यहाँ पे जाके ब्रांच कर रहा है। ठीक है, जैसे ही ट्रैकिया ब्रांच होगा वो फॉर्म करेगा लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई। क्या फॉर्म करेंगे, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई। ठीक है, तो यहाँ फोर्थ, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आपको लिखना है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई विल एंटर इनसाइड द लंग्स। ये जो आपको दिख रहे हैं दे आर लंग्स। ठीक है, तो ब्रोंकाई विल एंटर इनसाइड द लंग्स और वहां पे जाके वो फर्दर ब्रांच हो जाएंगे इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंकाई विल ब्रांच फर्दर टू फॉर्म प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, राइट? Now these bronchioles will finally lead to your alveolar sac. Bronchioles will finally lead to your alveolar sac, जहाँ से डिफ्यूशन के थ्रू आपका ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा इनटू द ब्लड कैपिलरीज। तो अगर हम लंग्स की बात करें बेटा, तो लंग्स में हमें क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखो ब्रोंकाई ने एंटर किया, ब्रोंक्यूल्स बने, ब्रोंक्यूल्स के बाद ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स बने, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स बने, जिन्हें हम लोगों ने कह दिया एल्वियोलाई। लंग्स के नीचे प्रेजेंट है डायफ्राम। ध्यान से देखना बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको एज अ पार्ट नहीं लिखना है, बट इसका फंक्शन तो हम याद रखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे पूरा रेस्पिरेशन। तो लंग्स के नीचे क्या प्रेजेंट है, डायफ्राम। लंग्स जो आप बोल रहे हो बेटा यहाँ पे, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो देर इज पेयर ऑफ लंग्स inside humans, and it is a bag-like structure which is surrounded by two membranes. The membranes of lungs are known as pleural membranes. Lungs की जो membrane है, they are known as pleural membranes. ठीक है, तो यहाँ पे लंग्स के सराउंडिंग में देर आर टू प्लूरल मेम्ब्रेन्स, ये याद रखेंगे। अब इसे ही हम बेटा डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, हियर वी आर गोइंग टू सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ हम लोग देखने वाले हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले हम देख रहे हैं नॉस्ट्रिल्स। क्या है, द वेरी फर्स्ट पार्ट इज नॉस्ट्रिल। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज नॉस्ट्रिल। तो ये जो आपका नॉस्ट्रिल है, ठीक है, नेजल पैसेज है, आपको पता है इसके बीच में सेप्टम है जो आपके नोज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। फाइन। अब इनसाइड द नोज यू कैन सी फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। अब ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स का फंक्शन क्या है, दे आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ आवर बॉडी। सो दे आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ आवर बॉडी। दे विल प्रिवेंट द पैथोजेंस फ्रॉम एंटरिंग इनसाइड। जो बहुत सारा डस्ट पार्टिकल आ रहा है, साथ साथ में फॉरेन बॉडीज आ रहे हैं जिन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं, उन्हें वो हेयर वहीं पे ट्रैप कर लेंगे। सो दे आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, याद रखेंगे हम लोग। साथ साथ में वहाँ पे नॉस्ट्रल्स में प्रेजेंट है म्यूकस। म्यूकस की वजह से इजीली यू कैन टेक इनसाइड द एयर। तो म्यूकस की वजह से जो एयर है उसका पैसेज क्या हो जाएगा, इजी। ठीक है, तो ये हो गया नेजल पैसेज। अब ये जो नेजल पैसेज है बेटा, इट वुड लीड टू फैरिंग्स। नेजल पैसेज वुड लीड टू फैरिंग्स। तो नेजल पैसेज किसको लीड कर रहा है, फैरिंग्स को लीड कर रहा है। Pharynx again is a common passage of food and air, we know. Pharynx will lead to larynx. यहाँ पे हमने देखा था एक thin cartilaginous flap, हमेशा याद रखेंगे, लिखेंगे इसे, that is known as epiglottis. Epiglottis flap जो larynx और esophagus में food और air का traveling easy बनाएगा, right? फिर larynx से आपका air move करेगा inside the trachea. अब ट्रैकिया को आप बेटा कह सकते हो विंड पाइप। ट्रैकिया को हम क्या कह रहे हैं, विंड पाइप। उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। क्या प्रेजेंट हैं, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, राइट। अब ये जो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, इनका काम क्या है, दे विल प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्स। दे विल प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्स। नेक्स्ट कम्स ब्रोंकाई। तो ट्रैकिया जब रिब्स के अंदर पहुंचेगा, इट वुड ब्रांच इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई।
It would branch into left and right bronchi which would enter inside the lungs. राइट तो अब ये जो ब्रोंकाई हैं वो दो हैं बेटा आपके, ब्रांच होके ट्रैकिया ने फॉर्म किया लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई एंड इट वुड एंटर इनसाइड द लंग्स. ठीक है, अब ये जो ब्रोंकाई ये फर्दर ब्रांच करेगा इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ब्रोंक्यूल्स. तो ब्रोंकाई और थिन कैपिलरीज में डिवाइड कर जाएगा एंड दे आर नोन एज, जो थिन स्ट्रक्चर्स वो फॉर्म कर रहा है ब्रांच होने के बाद, दे आर नोन एज ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंक्यूल्स कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. ठीक है, अब ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है, इस तरह से जो आपके टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स हैं दे विल फाइनली लीड टू एल्वियोलाई. जो आपके लास्ट ब्रोंक्यूल्स होंगे दे विल लीड टू योर एल्वियोलाई. एल्वियोलाई आर balloon like structures. We know that alveoli are balloon like structures. They will provide the surface for the exchange of gases. Alveoli is the place where exchange of gases occur. Alveoli is the final place where exchange of gases will occur. आपको एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो कौन सी जगह है जहाँ पे फाइनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स. तो यू हैव टू राइट डाउन एल्वियोलाई. ठीक है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा. यहाँ पे देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. अब ब्रीदिंग हो कैसे रहा है, राइट? फर्स्ट स्टेप इज इनहेलेशन एंड सेकेंड स्टेप इज एक्सहेलेशन. Inhalation is also known as inspiration and exhalation is also known as expiration. तो inhalation को हम क्या कह रहे हैं? inspiration, और exhalation को हम क्या कह रहे हैं? expiration, right? अब सबसे पहले तो जो lungs थे, lungs के नीचे present था diaphragm. This diaphragm will contract. This diaphragm will contract. तो वो नीचे की तरफ move कर रहा है, right? Your ribs will move out. ठीक है, your ribs will move out. तो जो thoracic वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा. जो लंग्स का अंदर का वॉल्यूम है उसे हम कहते हैं thoracic वॉल्यूम. तो जो thoracic वॉल्यूम है वो एक्सपैंड होगा. thoracic वॉल्यूम जब एक्सपैंड होगा बेटा तो एयर इज इनहेल्ड, जगह बनी ना, thoracic वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ तो डिफ्यूजन प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम बढ़ा तो जो गैसेस थी अंदर वो तो जितनी थी उतनी ही है, तो डिफ्यूजन प्रेशर कम हो गया. डिफ्यूजन प्रेशर कम हुआ, बाहर का डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा है तो मूव करेगा एयर इनसाइड. तो एयर इज इनहेल्ड एंड इट इज पास्ड इनसाइड द लंग्स and this air will fill the expanded alveoli. This air will finally reach into the alveoli. फिर से एक बार बेटा इनहेलेशन देख रहे हैं हम लोग. लंग्स थे, डायफ्राम था, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, थोरेसिक वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ, थोरेसिक वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ तो डिफ्यूजन प्रेशर कम हुआ इनसाइड द लंग्स. बाहर डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा है, एयर मूव करेगा फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो एयर इनहेल हो गया, एयर पास हो गया अप टू द लंग्स एंड इट विल फाइनली रीच इनटू द एल्वियोलाई. एल्वियोलाई में क्या हो जाएगा? गैसियस एक्सचेंज. ब्लड कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड वापस से ले लिया विच वॉज वेस्ट. अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को वी हैव टू रिमूव आउट. दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सहेलेशन. एक्सहेलेशन करने के लिए फिर से जो लंग्स के नीचे डायफ्राम था जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था इट वुड रिलैक्स. जो कॉन्ट्रैक्टेड डायफ्राम था इट वुड रिलैक्स, इट वुड कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. तो जैसे ही वो वापस आएगा, जो थोरेसिक वॉल्यूम पहले बढ़ा हुआ था, एक्सपैंडेड फॉर्म में था, वो रिलैक्स हो चुका है डायफ्राम, तो अब थोरेसिक वॉल्यूम कम हो गया. तो यहाँ पे आपका थोरेसिक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो गया. जैसे ही थोरेसिक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब डिफ्यूजन प्रेशर बढ़ा, तो हायर डिफ्यूजन प्रेशर से लोअर डिफ्यूजन प्रेशर पे चीज़ें जाएंगी, तो एयर इज थ्रोन आउट. तो दीज आर दी 2 स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में 2 चीज़ें आपको लिखनी है बेटा, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. उसके स्टेप्स इस फॉर्म में आप बता सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखो. एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमने बोला था कि जो फाइनल प्लेस है वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स दैट इज एल्वियोलाई. एल्वियोलाई आर balloon like structures found inside the lungs. That is the final site, main site for the exchange of gases, oxygen and carbon dioxide. The wall of alveoli is thin so that your gaseous exchange can occur easily. Alveoli, each alveoli is surrounded by blood capillaries.
तो एल्वियोलाई के सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है जिनके थ्रू ब्लड फ्लो कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड blood which is carrying your carbon dioxide is known as deoxygenated blood is entering inside your blood capillaries. कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव इनसाइड द एल्वियोलाई, ये एल्वियोलस के अंदर आ गया, और जो O2 है वो डिफ्यूज होके बाहर चला गया है। रेड ब्लड सेल्स इसे कैरी करेंगे, ऑक्सीजन को कैरी करेंगे। अब जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हम लोगों ने उसे बोल दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल मूव टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इट विल कैरी दैट ऑक्सीजन टू टिश्यूज, टू सेल्स एंड ऑल, राइट। सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन होगा, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। हम लोग आगे की स्लाइड्स में बेटा देख चुके हैं, एक बार देखो ये वाला पार्ट किया, ठीक है। तो ब्लड ने ऑक्सीजन कैरी करके ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन के थ्रू रेस्पिरेशन किया, एनर्जी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। अगेन दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड थ्रू ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, एल्वियोलस के थ्रू, वापस से वो लंग्स में पहुंचा। तो वही स्टेप हम लोग वहां पे देख रहे हैं बेटा, ठीक है। तो यहां पे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड विल एंटर इनसाइड द एल्वियोलस, oxygen will enter inside the blood capillaries. This carbon dioxide is removed through exhalation. ये जो ऑक्सीजन इनहेलेशन के थ्रू आया था वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू टिश्यूज और सेल्स को सप्लाई कर दिया जाएगा। फिर से CO2 कलेक्ट होगा, फिर से ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट वुड पास थ्रू एल्वियोलस, इट विल कैरी दी ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना, फिर से टिश्यूज में जाएगा। तो दिस इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू एल्वियोलाई। आपको जब भी ये क्वेश्चन आता है बेटा, ये डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्या क्या एक्सप्लेन करेंगे, एल्वियोलाई किस टाइप का स्ट्रक्चर है, बालून लाइक स्ट्रक्चर है, उसकी वॉल कैसी है, थिन वॉल्ड है, इट इज सप्लाइड बाय ब्लड कैपिलरीज, और फिर इस डायग्राम को आप एक्सप्लेन करोगे, राइट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए ट्रांसफर ऑफ गैसेस। अब ब्लड आपका मेन व्हीकल है विच इज गोइंग टू ट्रांसफर दी गैसेस, इट वुड कलेक्ट दी गैसेस, इट विल पास दी गैसेस टू टिश्यूज। तो मेन व्हीकल हमारा ब्लड है, ठीक है। ब्लड के अंदर प्रेजेंट है रेड ब्लड सेल्स। कलर हमें कैसा दिखता है ब्लड का, रेड। तो इट इज बिकॉज ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड क्यों दिख रहा है वो कलर, बिकॉज दे हैव अ पिगमेंट विच इज नोन एज हीमोग्लोबिन। वहां पे एक पिगमेंट प्रेजेंट है दैट इज हीमोग्लोबिन। तो वो ब्लड को इम्पार्ट कर रहा है उसका रेड कलर, रेड ब्लड सेल्स का अबंडेंस है ब्लड के अंदर, तो रेड कलर दिखता है पूरे ब्लड का। अब आरबीसी के पास जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, इट इज द मेन कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हीमोग्लोबिन बाइंड होगा ऑक्सीजन से, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, एंड दैट ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज कैरिड अप टू दी सेल्स। सो इट इज अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। तो मेन कैरियर वो किसका है, ऑक्सीजन का। सम ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स विल बाइंड टू कार्बन डाइऑक्साइड, बट कार्बन डाइऑक्साइड का जो मेजर ट्रांसफर है वो हीमोग्लोबिन से नहीं हो रहा। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर। हम क्या कह रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से ज़्यादा सोल्यूबल वाटर में कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसका जो ट्रांसफ़र है, इट इज़ मोस्टली ट्रांसपोर्टेटेड इन डिजॉल्व्ड फॉर्म। इट इज़ मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व्ड फॉर्म। डिजॉल्व्ड फॉर्म के थ्रू ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रेजेंट है उसमें डिजॉल्व्ड फॉर्म के थ्रू आपका कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगा। तो योर हीमोग्लोबिन कैन बाइंड टू बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बट मेजर ट्रांसफर वो किसका कर रहा है, ऑक्सीजन का। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मेजर ट्रांसपोर्ट है दैट वुड अकर विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के थ्रू मेजर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन डिजॉल्व्ड फॉर्म, हीमोग्लोबिन के थ्रू, आरबीसी के थ्रू ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, उसके थ्रू मेजर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। बट याद रखना बेटा, आपका जो हीमोग्लोबिन है दोनों को बाइंड कर सकता है, ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। ऑक्सीजन को जब बाइंड कर रहा है इट इज फॉर्मिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड को जब बाइंड कर रहा है इट इज फॉर्मिंग कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांसफर हो जाएंगे गैसेस, आपकी ब्लड कैपिलरीज उन्हें ले जाएंगे टिश्यूज तक ऑक्सीजन को, वहां से कलेक्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन दैट कार्बन डाइऑक्साइड विल कम इनसाइड योर एल्वियोलस एंड इट इज रिमूव्ड आउट इन द एयर। ठीक है, तो ये पूरा हो गया बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब प्लांट्स के केसेस में जो गैसेस का मूवमेंट है दैट इज जनरली थ्रू डिफ्यूजन,
प्लांट्स के अंदर एज सच कोई सिस्टम नहीं है फॉर दी ट्रैवलिंग ऑफ गैसेस, क्योंकि हर एक प्लांट पार्ट अपने गैशियस रिक्वायरमेंट का ध्यान खुद रख रहा है। थिन है, वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, सो योर गैसेस कैन इजीली एंटर इनसाइड द सेल। तो एज सच कोई सिस्टम रिक्वायर्ड नहीं है फॉर द गैशियस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो अलग से हम लोग ट्रांसपोर्ट, रेस्पिरेटरी ट्रांसपोर्ट नहीं पढ़ रहे प्लांट्स के अंदर। जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात रही कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की हेल्प से रेस्पायर होगा, एनर्जी फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट वुड अकर इन सिमिलर फॉर्म्स इन प्लांट्स। ठीक है, तो ये बात हो गई बेटा प्लांट्स की। प्लांट्स के केस में ह्यूमंस के कंपैरिजन में उल्टा रहेगा। प्लांट्स विल टेक इनसाइड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करके वो करेंगे फोटोसिंथेसिस। आगे की स्लाइड्स में हम लोग देख चुके हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा था ऑक्सीजन, उसमें से कुछ ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाएगा फॉर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जैसे यहाँ पढ़ा हम लोगों ने सेल के अंदर, वैसा ही सेम रहेगा। ठीक है, तो आज बेटा आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा है, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। नेक्स्ट जो लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2 का वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। थैंक यू।